وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ جی ہلو، مولانا طفیل شمسی صاحب بول رہے ہیں؟ جی میں بول رہا ہوں۔ جی فون آیا تھا آپ کا؟ ہاں میں نے فون کیا تھا جی، سوچا کہ آپ سے کچھ گفتگو ہو جائے احمد رضا صاحب کے کفری عقیدے کے بنیاد اوپر۔ مجھ سے گفتگو کریں گے یا پہلے میرے عالم سے گفتگو کریں گے؟ اچھا، آپ کے عالم سے کرائیں گے؟ اچھا چلیے، ایک بات میں پوچھ رہا ہوں، آپ مجھ سے گفتگو کریں گے نا؟ جی جی جی۔ مولوی اصغر صاحب ایک بات بتائیے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، ایک دم ایسا کریں گے کہ آپ پہلے بات کریں گے، پھر میں سنوں گا، میں بولوں گا تو آپ سنیں گے، ٹھیک ہے؟ جی جی۔ اب ایک بات بتائیے، آپ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کو میں ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے، جس طریقے کا سوال ہوگا اسی طریقے سے آپ جواب دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جی جی۔ آپ پہلے اپنا موقف واضح کریں کہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کیا مانتے ہیں؟ ہم احمد رضا کو اپنے اور اپنے ہم مسلک مولویوں کی عبارات کی روشنی میں کافر مانتے ہیں۔ آپ دیکھیے، میں نے اپنے اور اپنے ہم مسلک مولویوں کی بات مت کریے، پہلے آپ بتائیے کہ آپ ان کو اپنے ان کے نظریات کو جو میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ ہم مسلک مولویوں کے نزدیک مت جائیے۔ اچھا، ہم مسلک مولویوں کے ہاں کس معنی میں جا رہے ہیں آپ پہلے یہ بتا دیجیے، اس کو بھی ہاں چلیے، اس کو بھی واضح کر دیجیے نا، میں سوال کر رہا ہوں، پہلے اس کو بھی تو اس کی وضاحت کریے نا کہ وہ ہم مسلک مولویوں سے کیا مراد ہے، آپ کیا لیتے ہیں؟ جی، مثال کے طور پر آپ کے احمد رضا صاحب نے ایک کتاب ہے اللہ جھوٹ سے پاک۔ جی ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اس میں ایک لفظ خدا کے ساتھ ایک گندا اور غلیظ ناپاک عقیدہ کا اظہار کیا ہے۔ اچھا۔ اور ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نعوذ باللہ من ذالک خدا کے لیے فرض ثابت کیا ہے کہ خدا کے لیے فرض ہونا ضروری ہے، ورنہ زنا کیسے کرائے۔ یہ کتاب کا نام ہے اللہ جھوٹ سے پاک ہے، ٹھیک ہے؟ صفحہ نمبر بتا دیجیے ذرا۔ 162۔ 162، چلیے۔ اب اس کے تحت مولانا احمد رضا خان کافر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی، اس کے تحت کافر ہوتے ہیں۔ نہیں، میں اس کے تحت مطلب آپ کو ہی پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان میں ہے۔ میں نے مجھ کو پتا ہے، میں جو میرے سوالات ہیں میں ان سوالات کے آپ لفظ سن لیں، لفظ سن لیں۔ ہاں چلیے، لفظ آپ دہرائیں۔ خدا میں فرض بھی ضرور ہوئی ورنہ زنا کاہے میں کرا سکے گا۔ ذرا کتاب لوڈ ہو رہا ہے۔ ہاں، خدا کے لیے اعلی مردمی ہو تو اس کے مقابل عورت کہاں سے آئے گی؟ اندام زنی ہوا تو اس کے لائق اسے مرد کہاں سے آئے گا؟ تو آپ بتائیں، لفظ خدا کے ساتھ اتنی گندا لفظ اللہ کے لیے اعلی مردمی، اعلی زنی، توضیح بھی پیش کر دیں، اس عبارت کی توضیح بھی پیش کر دیں مولانا جی، اس عبارت کی توضیح بھی پیش کر دیں نا آپ۔ توضیح مطلب اگر کسی کے متعلق یہ کہا ہو کہ کوئی عالم کسی اور فرقے کا عالم کی طرف یہ منسوب کیا ہو تو یہ آپ ثابت کریں گے کہ کس عالم نے یہ عقیدہ اللہ کے متعلق کرا ہے۔ مجھے تو اصل میں میں نے آپ کی عبارت سن بھی لیا، جبکہ یہ عبارت مجھے سننے کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا اصل میں۔ جی، میں نے جو آپ نے یہ عبارت پڑھی، پہلے تو آپ نے کہا کہ ہم مسلک مولویوں کے نزدیک کافر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پہلے میری بات سنیں نا۔ آپ نے کہا کہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی جو ہے ہم مسلک مولوی، اپنے ہم مسلک مولویوں کے نزدیک کافر ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے مولانا احمد رضا خان کے عقیدے کو آپ نے یہ کیا کہ آپ نے اپنی تحقیق پیش کر کے ان کے اوپر کفر کا حکم لگایا۔ میں فتوی لگاؤں نا آپ کے گھر کے جو میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ نے اپنی تحقیق وہ اللہ جھوٹ سے پاک ہے میری تحقیق نہیں ہے، آپ کیسے بولتے ہیں؟ اس عبارت پہ کفر کا حکم آپ لگا رہے ہیں نا؟ ہاں، تو یہ کس کی تحقیق ہے پھر؟
हाँ तो मैं दे रहा तो सबूत मैं दे रहा हूँ ना। मैं तो वही तो पूछ रहा हूँ, उस इबारत पे आप कुफ्र का हुक्म लगा रहे हैं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप उस इबारत पे कुफ्र का हाँ, हुक्म लगा रहे तो हैं ना। आपके घर की किताब है, अल्लाह तबारक व तआला को गाली देने वाला मुशरिक है। अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले वो उधर तो उतनी बात ही नहीं हुई ना, मैं क्या पूछ रहा हूँ, जो मेरे सवालात से पहले आप आपने बोल रहे हैं मेरी मैंने तहरीक, क्या आप बोल वो रहे हैं मेरी तहरीक। सवाले चुनी जवाबे दिगर मारे घुटना फूटे सर मौलाना असगर साहब, पहले बात को समझे, मेरे सवालात क्या थे। मैं आपने कहा कि मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी जो है अपने हम मसलक मौलवियों के नजदीक काफिर है। मैंने कहा दलील के तौर पे कोई इबारत पेश करिए पहले, उसके बाद मैंने तो आपने कहा कि मौलाना अहमद रजा खां की किताब है अल्लाह झूठ से पाक है, उसमें मौलाना अहमद रजा खां ने जो है ये चीज किया है। तो ये बताइए कि क्या हम मसलक मौलवियों के नजदीक मौलाना अहमद रजा खां काफिर हुए कि अपनी इबारत के नजदीक काफिर हुए, पहले ये बताइए। हाँ मैं हवाला दे रहा हूँ ना आपको। फिर वही बात हवाला दे रहे हैं आप। आपके हम मसलक जो मौलवियों को, आपने तो जो इबारत पेश किया उस इबारत में हम मसलक मौलवियों के क्या होता है, हम मसलक मौलवियों के यहाँ जैसे तो आप हवाला तो ले मुझसे, हवाला तो मुझसे लेना। हवाला नहीं लेंगे किस तरह आप समझिए कि मैं क्या हवाला देना चाहता हूँ। अच्छा चलिए, अपने हम मसलक मौलवियों के मतलब क्या फतवा है कि अल्लाह को गाली देने वाले पर क्या फतवा लगाया आपके मौलवियों ने? क्या अल्लाह के लिए ये कहना कि खुदा में फर्ज होना जरूरी है, फर्ज और ना जिना कैसे कराएगा, ये अल्लाह को गाली देना नहीं है? अच्छा ये किताब मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी ने, मैंने ये बात पहले भी कह दी कि ये इन इबारत को सुनने के मैं कायल नहीं हूँ, इसलिए कि मेरा मौजू ही यही नहीं था, आपने मेरा मौजू ही नहीं समझा। अच्छा चलिए, नहीं मौजू आपका नहीं, मौजू मेरा है ना जनाब। तो फिर साहब नहीं मौजू आपका कहाँ से आ गया? मौजू मेरा है। सवाल तो मैंने किया था ना पहले आपसे कि मौलाना अहमद रजा खां को आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो अब चलिए हाँ। ये आपने बता दिया कि मौलाना अहमद रजा खां आपके नजरियात जो है उसमें आप मौलाना अहमद रजा खां को काफी ढूंढते हैं और आपने ढूंढ लिया अपने एतबार से, ठीक है। अब मेरे एक सवाल अपने एतबार से बोल रहे हैं, मुझसे दलील तो ले। अरे आपने जो दलील दिया है तो अब क्या अब मेरी भी दिफा सुनेंगे कि सिर्फ आप अपनी दलील दे करके रह जाएंगे, मेरी भी दिफा सुनेंगे ना आप? नहीं आपके घर से आपने, ठीक है, मेरे घर से ही किताब, अरे मेरे अल्लाह के बंदे, आपने मेरे ही घर से आपने मेरे ही घर से ये बात पेश की, मैं इससे कहाँ इनकार कर रहा हूँ। लेकिन आपने तो दलील दे दी, ठीक है, अब इसकी दफा भी सुनेंगे। ये बताइए कि आपने मौलाना अहमद रजा खां को काफिर कहा ना, मौलाना अहमद रजा खां काफिर हुए, ठीक है। अब एक बात बताइए, आपके नजरियात जो है मौलाना अहमद रजा खां को काफिर इस इबारत के नजदीक देखती है, हम अगर उनको मुसलमान मानते हैं तो मेरे ऊपर कौन सा हुक्म नाफिज होगा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, किसी काफिर के कुफ्र की जानने के बाद उसको मुसलमान समझना, जानने के बाद या उसके कुफरिया अकाइद की तमाम किताबों का मुताला करने के बाद मुसलमान कहे तो फिर कुफ्र उस पर जाएगा ना। अच्छा, कुफ्र एक आदमी काफिर है, एक आदमी काफिर है, तमाम किताबों का मुताला किया, चलिए बात मुकम्मल हो गई, मैं समझ गया आपकी बात। बाद में आप बोलेंगे आप ऐसा नहीं बोला, आपने मौलाना असगर साहब आपने बात बोल दिया, अब मेरी बात सुनिए, अब मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ। आप मिसाल के तौर पे आप, मेरी बात हो रही है मौलवी असगर साहब, मौलाना असगर साहब से, मैं हूँ, मेरा नाम है मोहम्मद तुफैल शमसी, ठीक है, तुफैल शमसी रजवी मेरा नाम है, आपसे मेरी बात हो रही है, ठीक है। अब एक बात बताइए कि अगर मैं आपको काफिर कह दूं किसी चीज के लिए, मैं कोई इल्जाम लगा दूं, इल्जाम न लगा करके बल्कि कुछ भी मैं आपके लिए एक उन्वान कायम करके, ठीक है, मैं आप पे कुफ्र का हुक्म लगा दूं, ठीक है, एक बात में, हाँ, मैं आपके ऊपर कुफ्र का हुक्म लगा दूं, कोई भी उन्वान हो, अब उन्वान कायम करके मैं आपके ऊपर कुफ्र का हुक्म लगाता हूं, तो ये तो बात 100% है ना मौलाना असगर साहब की, या तो आप काफिर होंगे या तो मैं काफिर होऊंगा। अगर कुफ्र आप पे सादिक आया तो आप काफिर हुए, और अगर कुफ्र आप पे सादिक नहीं आया तो मैं काफिर हुआ, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? नहीं गलत नहीं बोल रहे, गलत नहीं बोल रहे। चलिए ये बात तो एकदम तय हो गई, ठीक है। अब जरा मैं एक काम करता हूँ, आपके रुक जाइए एक मिनट, आपने यहाँ तक इकरार किया माशाअल्लाह, क्योंकि जो इबारत आपने पेश की वो इबारत तो मुझे सुनने का नहीं था, लेकिन रुक जाइए एक मिनट। हाँ, ये बताइए कि मौलाना अशरफ अली थानवी जो है ये आपके अकाबिर हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, आपके अकाबिर हैं, अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह हमारे अकाबिर हैं। ये देखिए मलफूजाते कमालाते अशरफिया, ये आपके घर की किताब है? जी हाँ, बोलिए क्या है लिखा है उसमें? मैंने कहा उसमें क्या लिखा है बात उसकी ने, मैं जितना सवाल पूछ रहा हूँ, ये आपके घर की किताब है ना? जी। और हकीमुल उम्मत
मुजद्दिदुल मिल्लत हजरत मौलाना मोहम्मद अशरफ अली साहब थानवी, ठीक है, इदारे जी। तालीफात अशरफिया, जिला जी मुजफ्फरनगर, थाना भवन जिला मुजफ्फरनगर, ठीक है। अच्छा हाँ हाँ, ये क्या नाम है, सफा है, रुक जाइए, सफा है 356, ठीक है। हेलो, हाँ बोले बोले सुन रहा सफा हूँ। है 356। मैंने आपने ये बात कही है, गौर से सुनिएगा कि जो मेरी और आपकी बात हो रही है और मैं आपके ऊपर कुफ्र का हुक्म लगाऊं और कुफ्र आप पे सादिक ना आए तो हदीस शरीफ की रोशनी में कुफ्र मेरे तरफ पलटेगा, ठीक है जी। ये एकदम आपने इसको तस्लीम किया। अब सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल, ये हदीस है ना, हदीस है ना, आपकी बात है। हाँ बिल्कुल, मेरी बात नहीं, मैंने ये मेरी जबान है, हदीस जो है वो है ये, हाँ। समझ रहे हैं क्या जी, है। एक शख्स ने पूछा, किससे पूछा, ये सफा नंबर 356 कमालाते अशरफिया, मलफूजाते कमालाते अशरफिया। एक शख्स ने पूछा कि हम बरेली जी। वालों के पीछे नमाज पढ़े तो नमाज हो जाएगी या नहीं, ठीक है। जी जी जी, फरमाया, हाँ, फरमाया, सुनिए 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 सुनिए, फरमाया हाँ, हम उनको काफिर नहीं कहते अगरचे वो हमें काफिर कहते हैं। जी, ये बताइए, देखिए देखिए बिल्कुल देखिए, सही हाँ सही कहा, तो इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि इसमें तो ये बात साबित हो गई कि आपके अकाबिर ने जो है मौलाना अहमद रजा खां पे कुफ्र का हुक्म नहीं लगाया, आपने लगाया है, ठीक है। और फिर उसके बाद, हम मेरी बात सुनिए, बात पहले मेरे मुकम्मल होने दीजिए ना। इसमें क्या है, इसमें क्या हुआ, मौलाना अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी ने आपके मौलाना थानवी पे कुफ्र का हुक्म लगाया है, कहिए ना हाँ। क्या आप मौलाना अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी ने मौलाना थानवी पे कुफ्र का हुक्म लगाया है ना? कहाँ पे लगाया है? क्या बात करते हैं, मौलाना थानवी पे कुफ्र का हुक्म नहीं लगाया है? हाँ लगाया, बोला लगाया है ना, बराबर। तो मौलाना थानवी पे कुफ्र का हुक्म लगाया, तो अब ये तो बात तय हो गई कि या तो मौलाना अहमद रजा काफिर हुए या तो मौलाना थानवी काफिर हुए, ये तो बात एकदम 100% तय हो गई, ठीक है। अब यहाँ मौलवी थानवी कह रहे हैं कि हम उन्हें काफिर नहीं कहते जी, तो इसका मतलब यह है कि भाई जाहिर सी बात है कि जब मौलाना थान, हाँ सुनिए 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 मौलाना असगर साहब, जब मत करें, मुझे पता है। हाँ मैं बता रहा हूँ, ये नई दलील नहीं है, बहुत पुरानी दलील है। हाँ मैं पुरानी दलील है, तो मेरी बात को सुनिए, मेरी बात को सुनिए। मौलाना थानवी क्या कह रहे हैं, मौलाना थानवी कह रहे हैं कि वो हमें काफिर कहते हैं अगरचे हम उन्हें काफिर नहीं कहते, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मौलाना अहमद रजा खान ने अगर बेजा काफिर कहा था मौलाना थानवी को, तब तो कुफ्र मौलाना अहमद रजा खान की तरफ पलटना था। मौलाना अहमद रजा खान उस रोशनी में खुद काफिर होते, लेकिन यहाँ तो मौलाना थानवी ने अपने कुफ्र का इकरार कर लिया। मौलवी साहब अब बताइए इसको, इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, पहली बात तो ये है, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने आपके अहमद रजा को मुसलमान कहा, काफिर नहीं कहा, है ना? है ना? आपके घर की किताब है कि हजरत थानवी के बारे में कहते हैं। एक मिनट बीच में, एक मिनट के लिए, एक लम्हे के लिए, हाँ देखिए मेरा उसूल है, मैं एक लम्हे के लिए मैं कता कलामी एक लम्हे के लिए मैं इसको घुसूंगा, एक लम्हे के लिए मैं इसको घुसूंगा, आपको बोलने का मौका नहीं दूंगा। एक लम्हे के लिए, देखिए 10 सेकेंड का मुझे मौका चाहिए। आपकी गुफ्तगू मैंने कितनी संजीदगी के साथ मैं भी सुनूंगा, मैं भी सुनूंगा, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। मौलाना अफजल साहब मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। मौलाना अफजल साहब मैं इनकार कर रहा हूँ। आप खुद देख ले कि ये मौलवी थानवी के कुफ्र को, मौलवी थानवी के कुफ्र को नहीं निकाला, मौलवी थानवी अपने कुफ्र का खुद इकरार कर लिया है। ये मौलवी जवाब से, मैं बीच में घुस करके सवाल जवाब का मुझे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है। ये मौलवी थानवी के कुफ्र को नहीं निकाल पा रहा है। ये मौलवी असगरुल असागिर बना दिया, मैं इसको असगरुल असागिर बना दिया। ये मौलवी थानवी के कुफ्र को नहीं निकाल पाया। अबे जाहिले मुतलक, मैं तुझको असगरुल असागिर बना दिया, मैं तुझको असगरुल, तेरे थानवी ने कुफ्र का इकरार कर लिया। तो तू बात को सुन, एक लम्हे के लिए जब मैं एक लम्हे के लिए जब मैं तुझसे जब एक लम्हे के लिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मैं जब कह रहा हूँ, अबे तेरे मौलवी थानवी ने मुसलमान ही नहीं माना बल्कि मुझे अपना इमाम माना है, मुझे अपना इमाम माना है। तेरे मौलवी थानवी ने अपना इमाम माना है, अपना इमाम माना है। अच्छा ये बता कि जब मौलाना अहमद रजा खां काफिर थे तो मौलवी थानवी ने दुआए
मगफिरत क्यों कर की, इसका जवाब दे देना। हाँ, दुआए मगफिरत क्यों कर की, बता दो। हाँ जवाब दुआए मगफिरत क्यों कर की, इसका जवाब दे दो। हाँ जवाब लो, चिल्लाओ मत। नहीं, अब मेरी बारी। असल में तू यूट्यूब के लिए मैं इसलिए कहा। फिर बोल रहे। हाँ चल बोल, फिर बोल रहे। हाँ चलो बोलो। एक किताब है आपकी इबारात अकाबिर का तहकीकी व तनकीदी जायज़। जब तक मैं बोलूँ आप खामोश रहना, ठीक है? मैं किस तरह सुने क्या अभी। हाँ बिल्कुल बोलना, ये आप बीच में बोलेंगे ना तो आप ये वाज़ेह करेंगे आपका मतलब काफिर है। चलिए। तो किताब है साहिबजादा गुलाम नसीरुद्दीन सियालवी। एक बात आप कहें, किसी पर कुफ्र का फतवा लगाना एक तहकीक की बुनियाद पर होता है या बगैर तहकीक के? किस पर होता है? तहकीक पर होता है बगैर तहकीक के? तहकीक के साथ कुफ्र का हुक्म लगता है ना। हाँ, तहकीक के लिए किसी काफिर और मुशरिक की किताब शिरकिया और कुफरी अकायद का मुताला करना जरूरी है ना? हाँ चलो बोलो, हम सुन रहे हैं ना। हाँ, किसी के पर कुफ्र का फतवा लगाने के लिए या मुशरिक का फतवा लगाने के लिए उसकी उन किताबों का मुताला करना जरूरी है। इसमें शिरकिया और कुफरिया इबारात मौजूद है। आप सबसे पहली बात तो ये साबित करेंगे कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अहमद रज़ा की तमाम कुफरिया शिरकिया किताब का मुताला किया हो, फिर उसके बाद थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे मुसलमान कहा हो। ठीक है, पहली बात। पहली बात इसका जवाब दीजिए ना, इसका जवाब दीजिए ना। मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। चलिए दूसरी बात, एक किताब आपकी इबारात अकाबिर का तहकीकी व तनकीदी जायज़ा, साहिबजादा गुलाम नसीरुद्दीन सियालवी की किताब है। मत बोलो यार, मत बोलो। चलो क्या मत बोलो बीच में। किताब का नाम क्या है? मैंने कहा था ना, अगर तुम बोलोगे बीच में बोलोगे गड़बड़ करोगे, फिर आखिर बोलो क्या कहा। अच्छा, किताब का नाम क्या बोला अभी? किताब का नाम बीच में तुम्हारा बोलना इस बात की दलील है कि मैं क्या तुमसे तस्दीक नहीं कराऊंगा? किताब के नाम की तस्दीक नहीं कराऊंगा? ये मेरा मुतालबा है, मैं मुतालबा करूंगा ना। किताब का हवाला मुतालबा करूंगा ना, मुतालबा करूंगा। इबारात अकाबिर का तहकीकी व तनकीदी जायज़ा, मुसन्निफ साहिबजादा गुलाम नसीरुद्दीन सियालवी। ठीक है, चलो। हाँ, सफा नंबर 414 में लिखा है कि उन लोगों को न देवबंदियों की उर्दू रसाइल देखने की जरूरत थी। इन लोगों को बात सुन्नी उलमा से अगर तहरीरी तफसीरी मनकुल नहीं हुई, यानी आपके बाज उलमा, ये हमारे उलमा की किताब है ना। हाँ, गुलाम नसीरुद्दीन सियालवी आपके आलिम है, बड़े आलिम। मौजू से भाग रहे हो मौली साहब, फिर मौजू से भाग रहे हो। मेरा एतराज क्या है? तुम अभी मेरी बात सुनो। आप अहबाब को जो दिखा रहे हो, अहबाब को खुद दिखा लो कि मौजू। हाँ, तो मौजू से ये बताओ, मेरे घर की किताब से इसका क्या लेना देना है, ये बताओ ना। मैंने क्या, जो मेरा एतराज था, जो मेरा एतराज था मौलाना, एक मिनट, जो मौलाना अहमद रजा खान को मुसलमान माना है, इसका मतलब अपने कुफ्र का इकरार किया ना। मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी, मेरी बात सुन लो। मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने कुफ्र का हुक्म लगाया मौलवी थानवी पे, और फिर मौलवी थानवी ने अपने कुफ्र का इकरार कर लिया, उनको मुसलमान मान करके। इसका जवाब तो दो ना मौली साहब। आप कह रहे हो कि पहले आप इसकी दलील दीजिए कि मौलाना थानवी ने जो है सारी तहकीक के बाद उनके ऊपर कुफ्र का हुक्म नहीं लगाया। आप पहले कहा था कि बीच में नहीं बोलोगे, तो बीच में नहीं बोलूंगा, तो पहले मौजू पे गुफ्तगू। आप मेरे घर की किताब के अंदर हो, मेरे घर, ये बताओ मौजू के अंदर अपने घर की, जब मैं तेरे घर के मौलवियों की बात कर रहा हूँ, तो ये बताओ कि तू अपने घर के मौलवियों से साबित करोगे? मेरे घर का हवाला दो। अपने घर के मौलवियों से मौलाना अहमद रजा की तकफीर साबित करो, नंबर 1। नंबर 2 की अपने मौलवी अपने जो तुम्हारे अकाबिर अरबा उनको मुसलमान मान रहे हैं, और तुम उनको काफिर कहने चले हो। मेरे अरबा में कौन कौन है? अकाबिर अरबा में कौन कौन है? बताओगे ना अकाबिर अरबा में तुम्हारे कौन कौन है? हम तो जानते हैं कि मौलाना थानवी है तुम्हारे, और क्या नाम है, मौलवी नानोतवी है, और वो मौलवी रशीद अहमद गंगोही है। आपको नहीं मालूम है? हाँ चलो बताओ। हमारे अकाबिर में मौलाना मंजूर नुमानी साहब भी नहीं, ये अकाबिर अरबा में नहीं है। तुम्हारे 4 अकाबिर में ये बात के हैं, उसके बाद के मौलवी हैं हमारे अकाबिर में। अकाबिर अरबा, तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हारे मुर्तजा हसन चांदपुरी जो है, ये मौलाना थानवी ने मुसलमान का हुक्म लगा, मुसलमान माना, उसके बाद अगर कोई आलिम उनको काफिर कहे तो क्या हुज्जत बनेगी? मैं तुमसे वही तो सवाल कर रहा हूँ ना, कि तेरे मौलाना थानवी ने अगर उनको मुसलमान माना है, तू उनके ऊपर कुफ्र का हुक्म लगाया, तो ये बात हुज्जत बनेगी? बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मैंने पहले सवाल किया था कि क्या तुमने कहा अकाबिर अरबा के मुताबिक, मैं हवाला तो फिर अपने मौजू पर आता हूँ। फतावा रशीदिया, रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, कदीम नुस्खे से साबित है ना।
फतावा रसीदिया। हाँ, कदीम नुस्खे से है ना, इसका सबूत कदीम नुस्खे से है ना। जरा मैं अपनी तसल्ली के लिए ये बात पूछ रहा हूँ भाई, मैं तसल्ली कदीम नुस्खे। हाँ चलो किताब है। हाँ, कदीम नुस्खे से इबारत पेश करो और वो व्हाट्सअप नंबर मेरा मैं तुमको बता दूंगा, उस पर भेजना जरा। हाँ चलो। तो यहाँ इल्म गैब का कायल होना, हाँ। हुजूर फरमाते हैं कि जो सब इल्म गैब का कायल हो वो काफी ये कदीम सफा नंबर क्या है? सफा नंबर क्या है? 206। एक मिनट, क्या नाम है? फतावा रसीदिया ईमान और कुफ्र के मसाइल। जिल्द नंबर बता दो ना। जिल्द नंबर देखना पड़ेगा, निकालो। हम मेरे पास कदीम नुस्खा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, मैं निकाल करके उसको भी यहाँ देखूंगा ना। जिल्द नंबर 2। जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 206। हाँ चलो ऐसा करो, अब एक मिनट तू जाओ किताब निकाल ले। ईमान और कुफ्र। एक मिनट मैं किताब निकाल लेता हूँ तब मौलाना इबारत पढ़ो। बगैर उसके इबारत क्यों पढ़ रहे हो? मैं किताब निकाल लूँ ना। फतावा रशीदिया मेरे पास सारी किताबें हैं मौजूद। रुक जाओ। हाँ अच्छी बात है। कदीम नुस्खा मेरे पास है। चलो जिल्द नंबर 2 सफा नंबर, जरा सफा नंबर फिर से बता देना। 206। हाँ 17 नंबर, क्या नंबर से 17 से पढ़ रहे हैं बताइए जरा। अरे यार बहुत कमजोर है। हाँ बताओ, तो मैं वही तो देख रहा हूँ। मैं 206 तो सफा नंबर। ईमान और कुफ्र के मसाइल। 206 पे ईमान और कुफ्र के मसाइल ही नहीं है इसमें। जिल्द 2 आपके फतावा रशीदिया के जिल्द 2 सफा नंबर 206 में ईमान और कुफ्र के मसाइल वाली बात ही नहीं है। अब बताइए मौलवी साहब, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। कदीम नुस्खा अपने हाथ से निकाल करके देखिए। मैं पेश कर रहा हूँ। हाँ देखो, इशाअत कहीं और से एडिशन कहीं का और हो, कदीम और से किताब छपी हुई हो, मतबा बताओ ना, कहाँ से ये किताब छपी है? मतबा बताओ। दारुल इशाअत। बिल्कुल। सफा नंबर गलत इबारत छोड़, गलत बयानी। आप एकदम सरासर झूठ बोल रहे हो मौलवी साहब। ये आप जदीद नुस्खा पेश कर रहे हो, कदीम नुस्खा नहीं है। पहले इसका एतराफ करो, आप झूठ बोल रहे हो। मेरे पास कदीम नुस्खा। देखो मैंने क्या बोला तुमको? फतावा रशीदिया कामिल जिल्द है, मुकम्मल जिल्द में से है। हम क्या कह रहे हैं कि आपने कहा ना सफा नंबर 206। हाँ जिल्द 2 सफा नंबर 206 पे ये बात है ही नहीं। आप झूठ बोल रहे हो। तो आगे भी देखो, तुम्हारा एडिशन कहाँ पे है? एडिशन कहाँ गए तुम्हारा? तुमसे मैंने क्या तुमने अपना एडिशन क्या पेश किया? तुम पहले ये बताओ ना, कदीम नुस्खे की दलील क्यों नहीं दे रहे? तुम अभी देखो, अभी जदीद नुस्खे की बात कर रहे हो। मैं भाग नहीं रहा हूँ। तुम मौलाना अहमद रजा खां के मौलवी असगर, मैं तुमको इसीलिए मैं तुम ये जानते थे कि यहाँ धप्पलबाजी चल जाएगी, इनके पास किताब नहीं होगी। यहाँ तूने धप्पलबाजी चलाना चाहिए, ये किताब में नहीं है कदीम नुस्खे में। तू कदीम नुस्खे से मौलाना अहमद रजा खां के अपने अकाबिर अरबा से कदीम नुस्खे से मौलाना अहमद रजा खां की तकफीर साबित कर दे। जिस दिन तक तकफीर तू अपने अकाबिर अरबा के कदीम नुस्खे से साबित करेगा, मैं मान लूंगा। तू कदीम नुस्खे से साबित ऐसा करो। सुनो, तुम मेरे व्हाट्सएप पे मैं नंबर बोल रहा हूँ 9116239772 पे मेरे व्हाट्सएप पे फोटो खींच के भेज दो अगर हकीकत तुम्हारे पास है। 9116 अपना एडिशन बताएगा कि मैं बताऊंगा। मैं अपना एडिशन बताना, फिर तो अब मैं बता दूंगा तो तेरी धप्पलबाजी तो चली जाएगी। तू अपना धप्पलबाजी चलाना चाहता है।